Hello students, today we are going to continue with the chapter which we started last time, that is a chapter of standard 9, science 2, chapter number 15, life processes in living organisms. So in the last two lectures we studied about different life processes which occur in different living organisms. Basically till now we have covered two life processes, that is transportation and excretion. We learnt about transportation in plants as well as in humans, and we also learnt about excretion in plants as well as in humans. So the third life process which we will be covering in this chapter is coordination. What is it? Coordination. So now in simple terms, if I ask you, what do we mean by the word coordination? What is the answer which you will give me? Some of you all will say कोऑर्डिनेशन का हिंदी में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसका मतलब होता है तालमेल, किसी चीज़ का आपस में तालमेल होना. To do any work you require coordination. Like right now I am writing on the board. So in doing this simple act of writing on the board also, all my body organs are coordinating with each other. My brain is sending a signal to my hands to move and to write. So that brain is sending a signal at the proper time. My hand is moving at a proper time. My hand is moving in the proper direction. All this requires coordination. कोई भी काम आप कर रहे हो ना, सपोज इफ आप लोग ने ग्रुप प्रोजेक्ट तो किया ही होगा कभी ना कभी. तो जब भी ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं तो एक ग्रुप में 5 या 6 जितने भी मेंबर्स साथ में काम करते हैं उनमें आपस में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ना. सबको एक एक हम ड्यूटी देते हैं कि चलो आपका काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, यू आर सपोज टू कलेक्ट द पिक्चर्स, यू आर सपोज टू डू द ड्राइंग, यू आर सपोज टू डू द राइटिंग. ऐसे सबका एक एक हम काम देते हैं एंड हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके फिर वो चीज़ करते हैं एंड अल्टीमेटली हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से रेडी होता है. बिकॉज everybody works in coordination and does the duty which is assigned to them. But imagine what if this coordination is not there only. किसी को बोला है आपने कि आपको राइटिंग का काम करना है, बट वो राइटिंग का काम छोड़ के ड्राइंग का काम कर रहा है और आपस में कुछ है ही नहीं, टाइमलाइन मीट नहीं हो रही है, तो आपका प्रोजेक्ट ठीक से बनेगा क्या? आपस में अगर हम लड़ झगड़ रहे आपका प्रोजेक्ट ठीक से बनेगा नहीं. That is, if there is no coordination, the work will not happen at the proper time and in a proper manner. सिमिलरली हमारी बॉडी में भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारी लाइफ ठीक से चलेगी ही नहीं. एवरी प्रोसेस विच गोज ऑन इन आवर बॉडी, बी इट डाइजेशन, बी इट एक्सक्रीशन, बी इट एनीथिंग, it requires coordination. The reason we are able to live a proper life is because there is a next level of coordination which is happening in our body. We can't even imagine हमारी बॉडी कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है और इसी वजह से हमारी लाइफ इतनी अच्छी तरह से चलती है. ठीक है, तो अभी ये कोऑर्डिनेशन जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स में होता है. तो सबसे पहले इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. सो नाउ वी विल बी बिगिनिंग विद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. ठीक है, अभी ह्यूमन बींग्स के पास तो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, cardiovascular system, muscular system, endocrine system. There are many systems in our body, and because of these systems only a coordination is maintained in our body. But plants में ना ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता. प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेट ऐसा कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता है, बट फिर भी उनमें कोऑर्डिनेशन होता है. तो उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? इन देम कोऑर्डिनेशन हैपन्स ऑन अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स. ओके, so there are different movements which plants exhibit, and on account of these movements we see coordination in them. So what are the two different type of movements we see in plants? So the movements which we see in plants of two major types are growth dependent movements and growth independent movements. What are they? So what are the two types of movements which we see in plants? They are growth dependent movements and growth independent movements. Now what do we mean by growth dependent and growth independent?
अभी सबसे पहले डिपेंडेंट मतलब क्या, वो उस पर निर्भर है, वो उस पर डिपेंड करता है। एंड इंडिपेंडेंट मतलब उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ग्रोथ डिपेंडेंट मतलब these type of movements are dependent upon the growth of the plant, they have some relation to the growth of the plant। एंड दूसरे जो है वो है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मतलब क्या, दे हैव नो रिलेशनशिप टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो अभी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स में कौन कौन से मूवमेंट्स आते हैं? इन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविट्रोपिज्म, there is something called as phototropism, and there is something called as chemotropism। Now before we understand what do we mean by gravitropism, phototropism and chemotropism, let us understand कि ये tropism क्या है। So what do we mean by the word tropism? सो आपकी टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन है दैट टेल्स अस दैट ट्रोपिज्म इज द मूवमेंट विच occurring in response to a stimulus। What is tropism? Tropism is the movement which occurs in response to a stimulus। अब स्टिमुलस मतलब क्या, कोई भी एक फैक्टर जो आपको स्टिम्युलेट करता है। लाइक अभी अगर मैंने अगर कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ पीछे आएगा, राइट। ऑटोमेटिकली आई विल पुल माई हैंड बिहाइंड। वाई विल आई डू दैट? बिकॉज वो जो हॉट वेसल को मैंने हाथ लगाया उसमें जो हीट थी दैट एक्टेड एज अ स्टिम्युलस एंड दैट स्टिम्युलस स्टिम्युलेटेड माई हैंड टू कम बैक। स्टिम्युलस मतलब कोई भी एक झटका, कोई भी एक चीज़ जो आपको मूवमेंट करवाती है, दैट इज़ अ स्टिम्युलस। ठीक है, वो एक्सटर्नल हो सकता है जैसे कि ये बाहर से था जिसकी वजह से मेरा हाथ पीछे आया, या इंटरनल स्टिम्युलस हो सकता है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से कोई मूवमेंट परफॉर्म हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको आपका फेवरेट फूड, जैसे अगर आपने आइसक्रीम देख ली, ऑटोमेटिकली अभी कभी कभी तो ऐसा होता है कि आइसक्रीम देखने की भी ज़रूरत नहीं, द मूवमेंट लाइक I like अंजीर आइसक्रीम वेरी मच। सो इफ़ द मोमेंट आई थिंक अबाउट अंजीर आइसक्रीम, मेरे मुंह में पानी आने लग जाता है। यहाँ पे कहीं पे भी अंजीर आइसक्रीम का नामो निशान भी नहीं है, बट दैट स्टिम्युलस इज सो स्ट्रॉन्ग कि उसने ऑटोमेटिकली मेरे टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट कर दिया एंड मैंने इमेजिन कर लिया कि मेरे सामने आइसक्रीम है एंड माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। So all these factors which basically stimulate some functions in your body, which stimulate some movements in your body are called as a stimuli। सो बेसिकली वो इन प्लांट्स वो मूवमेंट्स जो एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपिज्म। व्हाट आर ट्रोपिज्म? द और ट्रोफिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स विच अकर इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो अभी यहाँ पे क्या है, ग्रेविट्रोपिज्म। सबसे पहले अभी ग्रेविट्रोपिज्म के अंदर हम लोग एक और ले सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, अभी ट्रोपिज्म का मतलब तो हम लोग ने अभी पढ़ा कि ट्रोपिज्म क्या होता है, वो मूवमेंट जो एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। तो ऑब्वियसली ये सारे मूवमेंट्स में कोई ना कोई स्टिमुलस तो होगा। अभी ये ग्रेविट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म कौन सा प्लांट का पार्ट शो करता है? दीज मूवमेंट्स आर शोन बाय द रूट। ओके, सो ग्रेविट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म आर शोन बाय द ऑफ द प्लांट। अभी यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड ओनली ग्रेविट्रोपिज्म। तो यहाँ पे ग्रेवी आ गया, तो यहाँ पे एक स्टिमुलस होगा ग्रेविटी। एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, जहाँ पे भी यू सी द वर्ड हाइड्रो, ऑलवेज रिमेंबर इट इज वाटर रिलेटेड। So basically what is gravitropism? It is the movement shown by the root in response to the stimulus of gravity. And what is hydrotropism? It is the movement shown by the root in response to the stimulus of water. मतलब बेसिकली क्या, ऑब्वियसली ग्रेविटी क्या करती है? व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज़ द फोर्स विच पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। अब भी मैंने ये मार्कर को अगर नीचे छोड़ा तो ये ऐसे नीचे क्यों गिरेगा? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको नीचे खींचा।
क्यों? अगर मैं उसको ऐसे, अगर मैंने ये मार्कर को ऐसे ऊपर भी फेंका तो भी वो जाके नीचे गिरता है, ऊपर ऊपर जाता है क्या? नहीं, बिकॉज ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, नीचे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने मार्कर को अपनी तरफ खींचा. So that is why gravitational force is the force which is responsible for pulling things downwards. नीचे की तरफ खींचने के लिए वो responsible है ना. तो वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, रूट, कभी भी आपने रूट को ज़मीन के ऊपर उगते हुए देखा है क्या किसी ने? नहीं, रूट ऑलवेज ग्रोज अंडरग्राउंड, राइट. ज़मीन के नीचे ही रूट की ग्रोथ होती है, बराबर. क्यों ऐसे होता है, क्यों ऊपर नहीं उगता है? वाई? बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रूट को अंडरग्राउंड ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है. इट इज़ एक्टिंग एज अ स्टिमुलस फॉर द रूट टू ग्रो अंडरग्राउंड. सो दैट इज़ वाई द मूवमेंट ऑफ, और ऑब्वियसली ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है ना, बिकॉज रूट की ग्रोथ हो रही है अंडरग्राउंड डायरेक्शन में. So it is a growth dependent movement which is shown by the root in response to the stimulus of gravity. Gravity की वजह से रूट नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, ठीक है. तो ये हो गया ग्रेविट्रोपिज्म. अभी नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब क्या? द मूवमेंट ऑफ द रूट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर. अभी सबको रूट का फंक्शन पता है. एक प्लांट में रूट का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट. जो भी सॉइल के अंदर वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब रूट ही अब्जॉर्ब करता है. एंड रूट के थ्रू हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा, रूट पहले अब्जॉर्ब करता है जो भी वाटर है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, एंड फिर जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू वो बाकी सारे प्लांट के पास जाते हैं, बराबर. तो बेसिकली जो अब्जॉर्प्शन का फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ रूट परफॉर्म करता है. तो बेसिकली क्या होता है, सॉइल के अंदर पानी होता है, राइट, दैट इज़ अंडरग्राउंड वाटर. या अगर आपके घर में कोई प्लांट है, आप अगर पानी डालते हो तो कहाँ डालते हो? सॉइल में ही डालते हो, बराबर. तो ये जो पानी है इसको ये पानी एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है. वो पानी वो रूट को अपनी तरफ खींचता है. एंड टू अब्जॉर्ब दैट वाटर द प्लांट हैज़ टू ग्रो टूवर्ड्स दैट वाटर. The plant has to grow in downward direction and absorb that water. तो यहाँ पे भी वो रूट का ग्रोथ हो रही है, और वो क्यों हो रही है? इट इज़ अकरिंग इन रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस ऑफ वाटर, ठीक है. तो what are gravitropism and hydrotropism? These are movements which are shown by the root, and they are shown by the root in response. So we learnt about gravitropism. अभी दूसरा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कौन सा है प्लांट में? दैट इज फोटोट्रोपिज्म. अभी वेरेवर यू सी द वर्ड फोटो, फोटो का मतलब हमारी फोटोग्राफ नहीं, फोटो का मतलब साइंस में आप कहीं भी देखो तो अंडरस्टैंड दैट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लाइट. फोटोथेरेपी मतलब लाइट थेरेपी, ओके. फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स किसी की फोटोग्राफ निकाल रहे हैं क्या? नहीं. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड यूजिंग सनलाइट. So anywhere you see the word photo in science, understand that it has got some relation to light. तो अभी फोटोट्रोपिज्म क्या होगा? ट्रोपिज्म है तो इट इज़ अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस. एंड व्हाट इज द स्टिम्युलस हियर? इट इज़ द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस ऑफ लाइट. अभी ग्रेविट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म कौन बता रहा था? रूट. फोटोट्रोपिज्म कौन बताता है? फोटोट्रोपिज्म इज शोन बाय द स्टेम. अभी सबने देखा है, अभी अगर ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसके रूट्स तो नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं. इसकी जो स्टेम्स है ये हमेशा कहाँ ग्रो होती है? ऊपर की तरफ ना. कभी स्टेम्स को देखा है अंडरग्राउंड ग्रो होते हुए? नहीं. स्टेम्स ऑलवेज शो एरियल ग्रोथ. एरियल ग्रोथ मतलब उनकी ग्रोथ हमेशा ग्राउंड के ऊपर होती है. एंड यू विल सी स्टेम्स आर ऑलवेज ग्रोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. क्यों? दे आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट. वो लाइट की तरफ ग्रो हो रहे हैं, लाइट ऊपर से आ रही है तो वो लाइट स्टिमुलेट कर रही है ये प्लांट्स की स्टेम को अपनी तरफ ग्रो होने. So these stems are growing in response to the stimulus of light in the direction of light. So what is phototropism? It is the movement which is shown by the stem in response to the stimulus of, यहाँ पे अपना stimulus क्या है? The stimulus is light. ठीक है, तो समझा. फोटोट्रोपिज्म सबको बोलते हैं ना, धूप, प्लांट्स के लिए धूप बहुत ज़रूरी है. धूप बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के लिए, धूप नहीं आएगी तो प्लांट खाना नहीं बना पाएगा. एंड सेकेंड, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जो लाइट, सनलाइट होती है वो ही स्टिमुलेट करती है प्लांट को, प्लांट की स्टेम को ग्रो करने के लिए. सो दिस वॉज अबाउट फोटोट्रोपिज्म. अभी नेक्स्ट है अपना कीमोट्रोपिज्म. अभी कीमो से नाम समझ में हम लोग समझ सकते हैं कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू केमिकल्स. ठीक है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू केमिकल्स. अभी क्या केमिकल? प्लांट में किधर से आया केमिकल? क्या?
सो आप लोग जब ये 10th स्टैंडर्ड में जाओगे ना, तो आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है लाइफ, उसका भी नाम लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है, उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। तो उस चैप्टर में ना आप लोग को एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन डिटेल नाउ। सो इट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ सीन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है पता है? प्लांट के पास ना एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। अभी ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो फीमेल पार्ट है और जो मेल पार्ट है वो लोग को आपस में मीट करना पड़ेगा, राइट? इफ द फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट विल मीट विद ईच अदर ओनली देन विल फर्टिलाइजेशन अकर। तो बेसिकली ये ओवरी के अंदर ना फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम, ठीक है? तो ये ओवम क्या करता है? सर्टेन केमिकल्स रिलीज करता है। इट रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स, और ये केमिकल्स क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट द मेल गैमेट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द मेल गैमेट। तो वो मेल गैमेट पॉलिनेशन वगैरह के थ्रू आता है, वो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। बट वो इतना सारा प्रोसेस होके मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास क्यों आता है? उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे फीमेल गैमेट है? कोई आके उसको बोलता तो नहीं ना कि भाई यहाँ पे फीमेल गैमेट तेरा वेट कर रहा है, नहीं। बिकॉज द फीमेल गैमेट रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स एंड दोज केमिकल्स बेसिकली अट्रैक्ट द मेल गैमेट टूवर्ड्स इट। So what is chemotropism? Chemotropism is the movement which is shown by the male gamete. It is shown by the male gamete in response to the chemicals which are released by female gametes. So what are the growth dependent movements which we see in plants? We see gravitropism and hydrotropism. Gravitropism and hydrotropism are shown by the root. They are shown by the root in response to the stimulus of gravity and water respectively. Phototropism is shown by the stem in response to the stimulus of light. And chemotropism is shown by the male gamete in response to the chemicals released by the female. We understood what are growth dependent movements. Now we will understand what are growth independent movements. ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स मतलब क्या? जिनका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स का एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस प्लांट विच इज़ कॉल्ड एज टच मी नॉट। इसका कॉमन नेम है टच मी नॉट प्लांट एंड इसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा। क्या है? माइमोसा। तो अभी ये प्लांट का नाम टच मी नॉट क्यों है? इफ़ यू आर हैपन टू सी दिस माइमोसा प्लांट, वो दिखने में तो कोई भी नॉर्मल प्लांट की तरह दिखता है, उसके लीव्स होते हैं, सब कुछ होता है। बट जैसे ही आप वो प्लांट के पास जाओगे एंड वो लीव्स को आप ऐसे टच करोगे, वो लीव्स बंद हो जाएंगे, वो प्लांट पूरी तरह सिकुड़ जाएगा। इट डज नॉट अलाउ यू टू टच इट। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज टच मी नॉट प्लांट। ओके, इट कैन नॉट बेयर द स्टिमुलस ऑफ टच। तो यहाँ पे वो जो लीव्स है वो लोग एक मूवमेंट शो कर रहे हैं, बट उसका ग्रोथ से कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट? सो इट इज़ अ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट विच इज़ शोन बाय द टच मी नॉट प्लांट, ऑल्सो कॉल्ड एज द माइमोसा प्लांट। एंड देन दूसरा वाला है द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इज वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वीनस फ्लाई ट्रैप का जो एक और नाम है उसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट। क्या बोलते हैं? पिक्चर प्लांट। पिक्चर का मतलब क्या होता है? जग होता है। सबके घर में जग होगा, राइट? तो ये जग समवॉट ऐसा दिखता है। तो बेसिकली ये प्लांट भी एक ऐसे जग की तरह ही दिखता है, इसीलिए उसका नाम है पिक्चर प्लांट। तो ये पिक्चर प्लांट क्या करता है पता है? दिस इज़ अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब इट ईट्स इंसेक्ट्स, ठीक है? इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आके इसके माउथ पे बैठेगा ना, तो ये जग का माउथ पहले खुला होता है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट आके उस पर बैठेगा द माउथ विल क्लोज। वो जो प्लांट है इट विल ट्रैप द इंसेक्ट इनसाइड इट। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज वीनस फ्लाई ट्रैप, बिकॉज इट विल ट्रैप द फ्लाई इनसाइड इट। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ वीनस फ्लाई ट्रैप। तो यहाँ पे भी ये मूवमेंट शो कर रहा है ना प्लांट, इट इज़ शोइंग अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। बट इसकी ग्रोथ से रिलेशनशिप है क्या? नहीं। इट इज़ डूइंग इट टू फुलफिल इट्स एपेटाइट। It is doing it to fulfill its food requirement. ठीक है? So we learned about movement in plants.
What are the two different type of movements which we see in plants? Growth dependent movements and growth independent movements. Growth dependent movements में हमने क्या क्या पढ़ा? Gravitropism and hydrotropism, which is shown by the root in response to gravity and water respectively. Then phototropism, which is shown by the stem in response to light. Chemotropism, which is shown by the male gamete in response to chemicals released by the female gamete. And growth independent movements are shown by the touch-me-not plant, also called as the mimosa plant, and the Venus flytrap plant, also called as the picture plant. So with this we complete coordination in plants. So now we will begin with coordination in human beings. अभी ह्यूमन बींग्स में ना कोऑर्डिनेशन इतना सिंपल नहीं है. मतलब प्लांट्स के पास देयर वाज नो स्पेशलाइज्ड सिस्टम टू परफॉर्म कोऑर्डिनेशन. ओके, इट वाज लाइक ओनली सर्टेन मूवमेंट्स व्हिच दे परफॉर्म, जिसकी वजह से उनमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है. बट ह्यूमन बींग्स हैव स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन देम व्हिच एनेबल कोऑर्डिनेशन टू अकर. तो ह्यूमन बींग्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो दो लेवल पे होता है एंड दो टाइप्स का होता है, एंड वो है नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल. कौन से दो टाइप के कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में दिखते हैं? नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल. सो व्हाट इज नर्वस कंट्रोल? ऑल ऑफ यू ऑल नो कि हमारी बॉडी का बॉस कौन है, हमारी बॉडी का सेंट्रल कंट्रोलिंग ऑर्गन कौन है सबसे? इट इज़ नो वन एल्स बटा ब्रेन. हमारा जो ब्रेन है वही सब कुछ कंट्रोल करता है, राइट? इफ़ आवर ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग वी विल डाई. हमारा कोई बॉडी का प्रोसेस ही ठीक से चलेगा नहीं. तो सबसे मेजर लेवल पे जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है वो हमारा ब्रेन करता है. अब ब्रेन मतलब ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स है. इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. जो ब्रेन की स्टडी होती है न्यूरोलॉजी, इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस और डिफरेंट फील्ड ऑफ मेडिसिन. ठीक है, तो वो जो लेवल होता है ब्रेन के लेवल पे, जो कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन के लेवल पे, नर्व्स के लेवल पे, उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस कंट्रोल. दैट ऑल कम्स इन आवर नर्वस सिस्टम. और एक होता है केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल मतलब कुछ तो केमिकल्स होंगे जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं. तो वो केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स. क्या बोलते हैं? हार्मोन्स. अभी हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, देयर आर मेनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी. टू नेम अ फ्यू, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में. और ये ग्लैंड्स जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स. क्या बोलते हैं? हार्मोन्स. और ये हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? दे मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इंसुलिन. अगर आप लोगों को पता होगा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको खाना खाने के पहले एक इंजेक्शन देते हैं. व्हाट इंजेक्शन टू बी गिव देम? दैट इंजेक्शन इज इंसुलिन. अभी ये इंसुलिन हम लोग उनको बाहर से क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उनकी बॉडी में वो इंसुलिन नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. एंड बिकॉज नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हम उनको दे रहे हैं बिकॉज दिस इंसुलिन इज सो इम्पॉर्टेंट. दिस इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अ ग्लैंड कॉल्ड एज द पैनक्रियास. और ये इंसुलिन क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल्स इन आवर बॉडी. ठीक है, अगर ये इंसुलिन नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स बहुत राइज होते जाएंगे, विच कैन प्रूव टू बी वेरी डेंजरस फॉर अस. तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो बराबर से मेटाबोलाइज हो, हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे. ऑल दैट कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन बाय इट. सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं ताकि अच्छे से हमारी बॉडी फंक्शन कर सके.
सो दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ कंट्रोल, दैट इज़ केमिकल कंट्रोल। और दोनों नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। अगर इन दोनों में से एक भी ठीक से फंक्शन नहीं करे, ओके, so we understood the two type of controls which are present in human beings, that is nervous control and chemical control. So now let us begin with the first one. So now first let us begin with nervous control. अभी नर्वस कंट्रोल एज आई एक्सप्लेन्ड यू, इट अकर्स एट द लेवल ऑफ आवर ब्रेन, इट अकर्स एट द लेवल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब अभी ये नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है, जो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं एंड वो सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। एंड ये न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर transmission of impulses. What is it responsible for? It is responsible for transmission of impulses. अभी impulse क्या होता है? अभी आप लोग सबने कभी ऐसे सोचा है, चलो थोड़ा हट के बात करते हैं टॉपिक से। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? मीटर रूम से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो जहाँ से जनरेट होती है वहाँ इतनी दूर से वो हमारे घर तक कैसे पहुँच जाती है, वो भी इतनी टाइम पे, इतनी अच्छे से। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क वहाँ से प्रोड्यूस होता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ मैनी वायर्स, ठीक है। ये हमारे पूरे अगर आप हमारा मीटर सिस्टम या इलेक्ट्रिक सिस्टम देखोगे, देयर आर मैनी वायर्स विच आर बेसिकली कनेक्टिंग दैट इलेक्ट्रिक सोर्स टू आवर हाउस, राइट। वैसे ही हमारी बॉडी में भी, अभी जैसे मेरे ब्रेन ने, अब मुझे बोर्ड पे लिखना है, तो मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ को एक सिग्नल दिया कि चलो उठो और लिखो बोर्ड पे। तो अभी ये जो सिग्नल आया ना, ये सिग्नल को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ब्रेन ने ये सिग्नल प्रोड्यूस किया कि राइट, अभी ये जो सिग्नल है ये मेरे हाथ तक कैसे आया, कौन लेके आया? मेरे बॉडी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो वायर्स है, बट मेरी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ दिस इम्पल्स। सो ये जो इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। एंड देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, ओके। देर आर काउंटलेस न्यूरॉन्स एंड these are the longest cell of the body. What are they? They are the longest cell of the body, ठीक है। तो बेसिकली these are the cells which are responsible for transmission of all the impulses which are generated from our brain, and they are the longest cell of our body. एंड ये न्यूरॉन्स के कुछ असिस्टेंट्स भी होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, एंड उनके असिस्टेंट सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोग्लिया। क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया। सो व्हाट आर दे? दीज असिस्ट द न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शन। सो व्हाट आर न्यूरोग्लिया? न्यूरोग्लिया आर सेल्स विच असिस्ट द न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शन, ठीक है। तो अभी हमारी बॉडी में बहुत टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का अपना एक ऑल टुगेदर स्ट्रक्चर होता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एंड उन हर एक पार्ट का अपना अपना एक फंक्शन है जिसकी वजह से ये इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होती है, ठीक।